Hello friends, today I am going to teach you English. Okay. So first of all, I would like to say today is the Republic Day. It's a very happiest day in our history, and it is the festival of the nation. Okay. So I would like to say all my subscriber to Happy Republic Day, right? Why do we celebrate the Happy Republic Day? Happy Republic Day is the very important festival for all Indians, and it is celebrated every years on 26th January. It started from 26th January 1950, but our country got freedom on 15 August 1947, but still our country was not totally free. Because of that, we have not any constitution. So India that time were running according to the British rules. So but to get freedom, many revolutionaries martyr like Shahid Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Netaji Subhash Chandra Bose, who sacrificed their life for getting the freedom to our country. So we just salute them, to that peoples who fought against the Britishers. Britishers ruled over about 200 years on India. 200 years, sometimes some books say 300 years. So, and when so after getting freedom, after 15 August 1947, first of all, just to make a committee to draft Indian Constitution, and gave the responsibility to Dr. Bhimrao Ambedkar. That time, Dr. Bhimrao Ambedkar was a very genius person. So just gave him a chance to draft Indian Constitution. Then Dr. Bhimrao Ambedkar has completed Indian Constitution 2 years, 11 months, and 18 days. 18 days, and it was accepted by an official 26 November 26 November 1949. But still it is not implemented in our country. Because of that, our country dispersed in many states, and each states have a owner like emperor and king that time. So first of all, they unite the nation and unite the India at that time, and after that, when all the states and all the kingdoms just unite in India, that after that time is 26 January 1950. That time Indian Constitution has implemented. Okay, and that's why we are just celebrating each years on 26 January. We are 1950, since 1950, just we are celebrating. Okay, thank you. So अब हम चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये भी आपको बताना चाहूँगा कि वो तो लोग चले गए और उन्होंने आज़ाद कराया देश को, वो शहीद हुए, अमर हुए, लेकिन आज की जो पीढ़ी है, ये मैं देख रहा हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो देश के लिए कुछ करना नहीं चाहती। देश के लिए क्या, वो अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास पड़ोस के लिए जब वो कुछ नहीं सोच रही है, या उनकी जो नेचर, वो उनमें जो हेल्पिंग नेचर नहीं आ रहा है, जो एक दूसरे की सहायता करने की जो भावना आनी चाहिए, वो आजकल के बच्चों में नहीं देखी जा रही है। तो मैं उन सारे लोगों से जो स्टूडेंट लाइफ में या जो हमारे जो से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उसमें ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल जो है एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करिए। अच्छे नागरिक बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है। आप अच्छे नागरिक बनने का मतलब ये होता है कि आप अपने देश के कानून जो भी है, वो चाहे छोटे छोटे कानून हो, चाहे बड़े बड़े कानून हो, उसको पालन करें। उसको अगर आप पालन करते हैं तो भी आप अपने देश के लिए कुछ योगदान दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो ट्रैफिक
कि अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाइक चलाते हैं, लेकिन बाइक चलाते हैं तो बाइक के लिए क्या रूल्स है वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो हम कैसे कहें कि वो एक अच्छे नागरिक है, वो हमारे देश के बारे में सोच रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हेलमेट इज ए कंपलसरी फॉर द एवरी पीपल हु राइड द बाइक्स, तो हेलमेट जरूरी है, लेकिन क्या ये सारे लोग हेलमेट यूज कर रहे हैं? अगर ये इस चीज को सोचा जाए तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि 50 या 60% लोग ही हेलमेट यूज करते हैं, बाकी लोग तो ऐसे धड़ल्ले से चलाते हैं बाइक को, ऐसा लगता है कि उनके लिए कोई रूल्स ही नहीं है ना। या जो स्पीड, अगर हम करें कि स्पीड जो ट्रैफिक पुलिस की जो एक निर्धारित स्पीड है गाड़ी चलाने की, या उस लिमिट में आप गाड़ी चला रहे हैं? अगर आप अपने आप से खुद से सोचें तो आप तो दावा करते हैं कि हम भारत के निवासी हैं और भारत के नागरिक हैं और अच्छे नागरिकों में गिनती करते हैं, लेकिन क्या आपका सिर्फ टैक्स दे देने से आप एक अच्छे नागरिक बन जाते हैं? नहीं, क्योंकि आप जो कानून बनाए जाते हैं नागरिकों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं और बिल्कुल धड़ल्ले से ये सब चीज़ें चला रहे होते हैं। जो अनलिमिट मैं देखता हूँ सड़कों पे जो बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं, वो बाइक चलाते हैं बच्चे, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा 22-23 साल के लड़के होते हैं, 25 साल के लड़के होते हैं, उनको समझ है, वो पढ़े लिखे हैं, तो उनको जो है जो लाइसेंस मिला है उसको उसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हुई है कि आपको कितनी स्पीड में चलानी है बाइक, आपको क्या क्या पहनना है, आपको क्या ज़रूरतें हैं, फर्स्ट एड होना चाहिए आपके बाइक के उसमें अंडर सीट में, तो ये सब चीज़ें नहीं ध्यान देते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि आज के जो विद्यार्थी हैं ना कल के भविष्य हैं, आज के विद्यार्थी कल के भविष्य हैं। क्योंकि और अगर हम आपको बता दें, मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि जिस देश के विद्यार्थी और शिक्षक जितना ही अच्छे होंगे उतना ही हमारा देश मजबूत बनेगा। तो ये सारी चीजें, क्योंकि कहा जाता है ना टीचर इज द बैकबोन ऑफ आवर ओन कंट्री, और स्टूडेंट्स क्या हैं? स्टूडेंट्स इज द फ्यूचर फॉर द आवर कंट्री। जो विद्यार्थी है वो हमारे देश के भविष्य हैं, जो हमारे टीचर हैं वो हमारे बैकबोन है, किसान हमारे बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। अगर ये लोग अगर सही ढंग से नहीं रहेंगे या इनमें वो क्षमता नहीं आएगी तो फिर हमारा देश कैसे मजबूत होगा? देश तो एक नाम है, लेकिन देश मजबूत होता है देशवासियों से। जब अगर देशवासी ही ठीक नहीं रहेंगे, देशवासी ही जो है लापरवाही करेंगे, तो फिर देश कैसे मजबूत बनेगा? ये सोचने वाली बात है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस 26 जनवरी 19 जो 2022 चल रहा है 26 जनवरी, और आज का जो दिन है बहुत ही एक अपने आप में पवन पर्व है। तो आपसे ये कहूँगा कि आप आज से प्रण कर लीजिए कि बिना हेलमेट का और जो निर्धारित स्पीड है उस पर आप गाड़ी चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो आज के लिए फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज की क्लास आपको इंग्लिश पढ़ानी थी, थोड़ा मैं ज़्यादा ही बोल गया, तो चलिए देखते हैं। इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ माइंड। ओके, यूज़ ऑफ माइंड की हम बात करें तो माइंड का मतलब तो दिमाग होता है ना, दिमाग। लेकिन दिमाग ये जो चीज़ है, ये दिमाग यहाँ पे माइंड का यूज़ हम दिमाग से नहीं करेंगे। माइंड का मतलब बुरा भी होता है। हम कहते हैं ना यार बुरा मत मानो, यार डोंट माइंड, बुरा मत मानो, बुरा मत मानो। तो आप देखते हैं ना, बुरा मत मानो यानी दिमाग पे मत लो, माइंड मत करो, ऐसा होता है। तो हम इसी का यूज पढ़ेंगे कि माइंड का हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, अपने इंग्लिश के सेंटेंस में। तो चलिए यूज ऑफ माइंड हम देखते हैं। मैं बुरा नहीं मानता हूं अगर वह चाय पीता है। चलिए एक सेंटेंस देख लेते कि मैं बुरा नहीं मानता हूं, मानता हूं अगर वह चाय पीता है, ठीक है। तो चलिए अभी आप सेंटेंस को देख रहे हैं कि मैं बुरा नहीं मानता हूं अगर वह चाय पीता है। इसमें डूवर्स कौन है? डूवर का मतलब काम करने वाला कौन है? बोल। देखिए अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि बोल कोई और रहा है, मैं बुरा नहीं मानता हूं अगर वह चाय पीता है। देखिए, तो मैं बुरा नहीं मानता हूं
इसमें डोवर काम करने वाला कोई दूसरा है ना, डोवर इज समबडी। तो जब ऐसा सेंटेंस आए जहां पे काम करने वाला दूसरा हो, बुरा किसी और को लग रहा हो, नहीं लग रहा हो, अगर इस तरीके के सेंटेंस आते हैं तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो आप चाय पीता है, ये सिंपल सा प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है। इस पे आपको ध्यान देते रहना है कि कौन से टेंस में कब कौन सा सेंटेंस आ रहा है। तो चलिए, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, आई डोंट माइंड। अब बोलते हैं आई डोंट माइंड, क्या बोलते हैं, आई डोंट माइंड इफ उसके बाद ही टेक्स टी, ठीक है। आई डोंट माइंड इफ ही टेक्स टी, मैं बुरा नहीं मानता वो अगर चाय पीता है, मैं बुरा नहीं मानता वो सिगरेट पीता है, मैं बुरा नहीं मानता हूं अगर वह सिगरेट पीता है, ठीक है। तो देखिए, मैं बुरा नहीं मानता हूं अगर वह सिगरेट पीता है, ठीक है। तो देखिए, मैं बुरा नहीं मानता हूं अगर वह सिगरेट पीता है, तो मैं बुरा नहीं मानता हूं, तो फिर आपका आई डोंट माइंड आप ये करेंगे आई डोंट माइंड इफ, फिर लगाया हमने ही स्मोक्स। अब ये नहीं कि ड्रिंक सिगरेट कर देंगे, वो आप पीता का मतलब इसी को कहते हैं कि इंग्लिश में आपको हर जगह पे एक स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, आप इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पे ड्रिंक यूज करना है, कहाँ पे स्मोक यूज करना। कभी आपको इस पे हम क्लास लेंगे कि आपको अगर बोलना है तो बोलने में कितनी चीजें किस तरीके की आती है, पीना है तो पीने में कितनी तरह की चीजें आती है, अलग अलग वर्ड्स पे अलग अलग सेंटेंस पे अलग अलग वर्ड बनते हैं, ठीक है। तो आई डोंट माइंड इफ ही स्मोक्स सिगरेट, ठीक है, आई डोंट माइंड इफ ही स्मोक्स सिगरेट्स, ठीक है। तो ये हो गया आई डोंट माइंड इफ ही स्मोक्स सिगरेट। तो आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि ये आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये वाला आप देख रहे हैं, और यहाँ पे आई डोंट माइंड यूज करना है, बीच में इफ लगा देना है, दैट इज वेरी सिंपल, राइट। तो चलिए हम फिर से अब आगे देखते हैं। मैं बुरा नहीं मानता हूं अगर तुम राखी सावंत से प्यार करते हो। चलिए देख लेते हैं। मैं बुरा नहीं मानता हूं अगर तुम राखी से बात करते हो। चलिए बात करते हैं, है ना, करते हैं, ठीक है। मैं बुरा नहीं मानता हूं अगर तुम राखी से बात करते हो, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट माइंड इफ यू टॉक टू राखी, दैट इज वेरी सिंपल, राखी। आई डोंट माइंड इफ यू टॉक टू राखी, आई डोंट माइंड इफ यू टॉक टू राखी। चलिए, अब ये तो हो गया कि जब कोई दूसरा था, कोई आदमी, इसमें व्यक्ति जो काम करने वाला है, जो करने वाला था वो दूसरा व्यक्ति था। अब हम देखते हैं कि इसमें एक तरह का और दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं। देखिए, तो इसमें हम देखेंगे आई डोंट माइंड। देखिए, आई डोंट माइंड हो गया, अब प्लस, अब इसमें आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं, एंड एनी अदर वर्ड जो भी आते हैं आप इसमें एनी अदर वर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनी अदर वर्ड WORD है वर्ड, ठीक है, एनी अदर वर्ड्स। तो आई डोंट माइंड प्लस आईएनजी। तो अब ये कब होगा, जैसे उसे मारने में मुझे बुरा नहीं लगता है, उसे मारने में मुझे बुरा नहीं लगता है, उसे मारने में मुझे बुरा नहीं लगता है, ठीक है। उसे मारने में मुझे बुरा नहीं लगता है, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट माइंड बीटिंग हिम, दैट्स अ वेरी सिंपल। आई डोंट माइंड क्या हो जाएगा, हमने बोला आई डोंट माइंड बीटिंग हिम, दैट इज करेक्ट। आई डोंट माइंड बीटिंग हिम। अब इसमें इफ का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, मुझे ही है, यानी कि जो काम करने वाला खुद है,
खुद जो व्यक्ति है काम कर रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, मुझे खाना खाने में बुरा नहीं लगता है। किसको बुरा लगेगा? किसी को नहीं लगेगा। खाना खाने में मुझे खाना खाने में बुरा नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है, ठीक है, नहीं लगता है। मुझे खाना खाने में बुरा नहीं लगता है, ठीक है। मुझे खाना खाने में बुरा नहीं लगता है, बुरा नहीं लगता है, ओके। तो आई डोंट माइंड ईटिंग फूड, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है जो आपको बोलना चाहिए और आपको सीखना चाहिए। बहुत इंग्लिश बहुत इजी और फनी लैंग्वेज है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत। देखिए, इंग्लिश नहीं बोल पाने का सिर्फ मेन रीज़न होता है हेजिटेशन। अगर आप हेजिटेशन अपने दिमाग में रखेंगे तो फिर आप कभी अपनी ज़िंदगी में आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो हेजिटेशन को हटाना पड़ता है। हेजिटेशन के लिए बहुत सारी क्लासेस होती हैं, उस तरीके की जो प्रैक्टिस कराते हैं, तो तब वो बच्चों का हेजिटेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे।